Hello students, how are you? Students, today I am going to explain about nouns and kinds of noun. So get ready for understanding. Students, you can see on screen one definition is given. First we will read and then we will understand. Nouns. A noun is a name of a person, place, animal or a thing. A noun is a name of यानी कि noun name किसका नाम है person यानी व्यक्ति place यानी कि स्थान animal यानी कि जानवर and thing means वस्तु यानी कि संज्ञा noun means संज्ञा संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं एग्जाम्पल देखेंगे Ravi lives in a big city. Radha is my best friend. Students, can you guess where is the noun here? So first we will search where is the name. So Ravi is a name, city is also a name, Radha and friend. So we will see why these all are noun. First Ravi is a noun because it is the name of a person. Ravi noun है क्योंकि यह व्यक्ति का नाम है. Radha is also a noun because it is the name of person. City, here city is noun. City is noun because it is the name of place. So students, you can easily understand कि all the naming words जैसे कि चाहे कोई भी हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जानवर हो, सब्जी हो, फल हो, क्या किसी भी चीज का नाम हो, all naming words are called noun. So students, next we will read or understand about the kinds of nouns. So there are 5 kinds of noun. First one proper noun, common nouns, third collective nouns, fourth material nouns and fifth abstract noun. So we will study all the kinds of noun one by one. So first move to the first kind of noun, proper nouns. Proper noun means a proper noun is the special name of a particular person or place. यानी कि प्रॉपर नाउन यानी कि इसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको हिंदी में कहते हैं जो कि कोई भी किसी भी व्यक्ति का स्पेशल नेम या पर्टिकुलर नेम यानी कि जो स्पेशल नेम हो किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो या स्थान विशेष का नाम हो उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन वी विल we can easily understand from the example. The President of India lives in New Delhi. Rohit is my best friend. So you are also knowing the president is only one person in any country. India is also only one India in the world. New Delhi is a special city of the India. So all are special names. So all these are proper noun. Rohit is also a special name of a person. So this is a proper noun. So one thing you have to always remember that proper noun always begins with a capital letter. यानी कि जो आपका proper noun होता है वो हमेशा capital letter से start होता है चाहे वो आपके sentence के mid में ही क्यों ना हो यानी कि sentence के बीच में भी अगर proper noun आता है तो हम उसको capital letter लिखते हैं. Now students move to our second kind of nouns. So that is a common noun. Common noun यानी कि हिंदी में हम इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा. A common noun is a common name given to every person, place or thing or a thing for a same kind of class. यानी कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम जो विशेष या जो एक विशेष जाति वर्ग में आता है जैसे कि मैन वुमेन कंट्री सिटी स्कूल ऑल आर कॉमन नाउन क्योंकि हम अगर एक स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल मीन्स सारे स्कूल बॉय मीन्स जितने भी बॉयज होते हैं उनको बॉय कहते हैं जब हम किसी भी स्पेशल पर्सन का नाम नहीं लेते हैं तो उसका मतलब है वो कॉमन नाउन है जैसे माय मदर कुक्स फूड फॉर मी एनीवन इज कोटिंग दैट his mother or her mother is cooks food for them so it means ki mother we can say our mother anyone can say mother so mother is not a special name food is also not a special name sister is also not so all these here are common nouns a common nouns does not point out to any particular person place or thing यानी कि कोई भी common noun जो होता है वो किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता है. So move to third kind of noun that is a collective nouns. A collective noun is a name of a collection of persons or things considered as one. Collection
कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक, कलेक्शन मतलब संग्रह, यानी कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के संग्रह को अगर हम एक नाम देते हैं उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे वी सा अ हर्ड ऑफ कैटल इन द फील्ड, द कमेटी इज होल्डिंग इट्स मीटिंग। हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड मतलब झुंड और कैटल मतलब जानवरों का, यानी कि एनिमल्स, जहाँ ढेर सारे एनिमल्स होते हैं उनके झुंड को हम हर्ड कहते हैं। मेंबर्स, स्पेशल मेंबर्स, जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स जिसको हम कमेटी उसको कहते हैं, सिलेक्टेड मेंबर्स जिसको होते हैं, उसमें मोर देन वन मेंबर्स होते हैं, तो वहाँ पे भी ये मेंबर्स के ग्रुप को हम यहाँ कमेटी का नाम दे रहे हैं। तो हर्ड एंड कमेटी इज अ कलेक्टिव नाउन हियर। सो कलेक्शन ऑफ अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन व्हेन रिफरिंग टू अ सिंगल यूनिट, यानी कि जब भी हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका जो वर्ब होता है, कलेक्टिव नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब फॉर्म, यानी कि यहाँ पे हमेशा इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। सो नेक्स्ट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, अ नाउन विच स्टेट्स an idea or feeling that we cannot touch, only we can feel or express, is called abstract noun. Abstract noun means यानी कि ऐसा कोई भी आइडिया या फिर तथ्य या फिर जो हमारे अनुभव हैं जिसको कि हम सिर्फ फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट टच, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि कोई भी हमारी जो भावनाएं, जो अनुभव हैं जिसको कि हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते या फिर छू नहीं सकते, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी वी कैन ओनली फील। ब्रेवरी, ही फॉट विद ब्रेवरी, ब्रेवरी यानी कि वीरता, वीरता भी हम किसी के कर्मों को देखकर समझते हैं, ना कि हम उसको टच कर सकते हैं या छू सकते हैं। तो दैट इज द abstract noun. Students, one more point we have to always remember that proper noun, common nouns, collective nouns and material nouns are called concrete noun. Concrete noun means कि which we can touch or see, यानी कि जिसको हम छू सकते हो या देख सकते हो, that we call concrete noun. But which noun we cannot see or touch, we can feel or express only, that we call abstract noun, and that is not a concrete noun. So next to material noun. Material noun, a noun which stands for the matter or substance of which things are made, is called material noun. A noun which stands यानी कि ऐसा शब्द, ऐसी संज्ञा जो किसी धातु या तत्व के लिए रखी जाती है या उसके लिए यूज की जाती है, जो कि किसी वस्तु के निर्माण में या उस वस्तु को बनाने में यूज किया जाता है, यानी कि इसको हम कहते हैं धातुवाचक संज्ञा। यानी कि ऐसी धातु या तत्व जिसके द्वारा किसी वस्तु का निर्माण होता है। जैसे विंडो पैन्स आर मेड ऑफ ग्लास, विंडो पैन्स यानी कि जो हमारे खिड़की के शीशे दरवाजे होते हैं वो किससे बने होते हैं, किससे बने होते हैं, ग्लास से। आयरन इज अ यूजफुल मटीरियल, व्हाट इज अ यूजफुल मटीरियल, आयरन। तो हियर आयरन, ग्लास, ग्लास भी एक धातु है, आयरन भी धातु है। सो ऑल आर मटीरियल नाउन। जैसे अगर मैं बोलूँ कि माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो क्या होगा, गोल्ड, हमारी रिंग कैसे बनी है, गोल्ड से बनी है। तो जो भी द चेयर इज मेड ऑफ वुड, कुर्सी किससे बनी है, लकड़ी से बनी है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है, धातु हैं, यानी कि मटीरियल नाउन है। मटीरियल नाउन और ऑफ टू काइंड्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। मटीरियल नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं और जिसको एक प्रकार है जिसको हम नहीं गिन सकते। Second, test your knowledge, students. Keep all the nouns in their proper column. Here, so many columns are given here: proper noun, common noun, collective nouns, material nouns, abstract noun. Students, यहाँ पे आपको कुछ नाउन दिए गए हैं: बंडल, ताजमहल, फ्लॉक, क्लासरूम, न्यू दिल्ली, महात्मा गांधी, टीचर, गोल्ड, विजडम, सिल्वर, क्रुएलिटी. So students, you have to select all these noun in their proper column. तो बंडल हमारा कहाँ जाएगा, कॉमन नाउन में, ताजमहल प्रॉपर नाउन, फ्लॉक आपका कलेक्टिव नाउन है, ऐसे ही क्लासरूम कॉमन नाउन। तो सो ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स मेक दिस कॉलम ऑन योर कॉपी एंड all these nouns you select and write in your proper column. Hope you all are understood and thank you for watching my video.